यहाँ पे हाथ पोछे गए हैं और ये ब्लड है अभी भी, और काफ़ी ऐसे लग रहा है कि काफ़ी गुत्थम गुत्था हुई है। काफ़ी देर यहाँ संघर्ष हुआ है और ऐसे ही बच्चों ने अपनी जान नहीं दी। निश्चित तौर पर उन्होंने संघर्ष किया। दीवालों पे ब्लड लगे हैं और इसके अलावा इस पर भी निश्चित तौर पर वो भागने की कोशिश कर रहे थे और बार बार गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और ये ब्लड काफ़ी दूर तक फैला है। मतलब यही है कि इन्होंने संघर्ष किया। यहाँ तक ये खून दिख रहा है। इतनी आसानी से प्राण नहीं त्यागे। ये मिलनसार लोगों की हरकत है। 5,000 रुपए भी ले लिए और मासूम यहाँ से संघर्ष होना स्टार्ट हुआ है और ये संघर्ष यहाँ तक चला। कैसी मानसिकता के लोग यहाँ पर आए? क्या नाम है? इस पर ब्लड आया, इसको भी खोलने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से बच्चे भागने की कोशिश कर रहे थे और फिर यहाँ पे उनको पकड़ा गया, बेरहमी से मारा गया। बच्चे घिसटते हुए यहाँ तक आए और दीवालों पर भी ब्लड लगा। ऊपर भी उन्होंने हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी। अच्छा, पढ़ने लिखने में कैसे थे? बहुत अच्छे बच्चे थे। अभी हमारे कार्यक्रम हुआ था, उसमें बच्चा लवकुश बना था। अच्छा, कौन सा लड़का? बड़ा? वो बड़ा वाला। अच्छा, छोटा बच्चा भी आप ही के यहाँ पढ़ता था? छोटा वाला हमारे शिशु मंदिर चलता है, उसमें पढ़ते थे दोनों। अच्छा, दोनों ही आपके यहाँ पढ़ते थे। अच्छा, ये जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का है? आपका यूपी बोर्ड का है। यूपी बोर्ड का है। ये विद्यावार्थी का आरएसएस का विद्यालय है। अच्छा, माँ के जो बोलते हैं कि माँ के बाद गुरु ही बच्चों को ज्यादा समझता है। आपके यहाँ काफी दिन पढ़े, कभी हाव भाव बातचीत से कोई परेशानी? बहुत सीधे बच्चे थे। अच्छा, सरल बच्चे थे, किसी तरह की शरारत उनमें नहीं थी। अच्छा, पढ़ने में अच्छे थे। अच्छा, घर का भी वातावरण बड़ा कल्चरल था। अच्छा, धार्मिक प्रभावित थे। अच्छा, बड़ा सहयोगी प्रवृत्ति थी सर। अच्छा। तो वो लोग अक्सर आपके स्कूल में आते थे। लौकुश का कार्यक्रम भी हुआ था, लौकुश बना भी था वो लड़का। तो मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था बच्चा। তো এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম যে বা দেখছিলাম যা, সেই বিভৎস জায়গাটা হচ্ছে যেখানে দুটি ছোট্ট ছোট্ট ছেলেকে নৃশংসভাবে 28 বার কাউকে 22 বার ছুরি মেরে খুন করেছে মোহাম্মদ সাজিদ নামের এক ছোকরা। এবং তারপরে ঘটনার 3 ঘন্টার মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের গুলিতে তার সে নিহত হয়েছে। তো ঘটনা হচ্ছে যে তার ছোট ভাইকে আজকে বেরিলি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছোট ভাই বলেছে সে নাকি কিছুই জানে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু ঘটনার সময় সেও ছিল সঙ্গে। এবং এখন তার একটা ইন্টারভিউ আমি কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম, হয়তো আপনারাও দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে, আমরাই দেখাবো। তাছাড়াও আজকে বদায়ু থেকে সরাসরি কথা বলতেন আপনার সঙ্গে। ওখানে রয়েছেন ওপি ইন্ডিয়ার খুব প্রখ্যাত রিপোর্টার রাহুল পান্ডের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবে এবং তার কাছ থেকে আমরা শুনবো বদায়ুর পরিস্থিতি কিরকম এবং বদায়ুতে ঠিক কি ঘটেছে, শহরের মানুষ কি বলছে এবং কোন দিকে ইঙ্গিত করছে এই পুরো ঘটনা। আমি একটা ব্যাপার একটু মাঝখানে ছুঁয়ে দিয়ে যাই, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। যে দেখুন, এমনিতে এক ধরনের জিহাদ যে চলছে আমাদের চারপাশে, এ নিয়ে কোথাও কোনো সংশয় নেই, আমরা জানি। আমাদের চারপাশে কেন, গোটা বিশ্ব জুড়েই চলছে। তার বিভিন্ন রকম মুখ আছে। কখনো সেটা লাভ জিহাদ হিসেবে উপস্থিত হয়, কখনো সেটা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে উপস্থিত হয়, কখনো সেটা অন্য কোনো রকম চেহারা নিয়ে আসে। কিন্তু আলটিমেটলি বোঝা যায় যে সেটা উদ্দেশ্যটা একই। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে যত বিধর্মী আছে তাদের শেষ করো। তো এই হচ্ছে এই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি খুনটা করেছে, 27 বছর বয়সের মোহাম্মদ সাজিদ, যে খুনগুলো করেছে, যে করেছে বলে এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে খবর। কিন্তু এর মানে এই নয় যে খুনগুলো সে একাই করেছে। আরেকজন যে ছিল সে কিছুই করেনি, কোন রকম ভাগ নেয়নি, তাহলে বাধাও তো দেয়নি। নিজের ভাই, তার বড় ভাইকে সে তো বাধাও দেয়নি।
এটা আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা একটা বড় সড়ো পরিকল্পনার অঙ্গ। অনেকে এটা লোন উলফ অ্যাটাক বলছেন বটে, কিন্তু লোন উলফ অ্যাটাক এটা নয়, কারণ এটা পরিচিত পরিবার, নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ভাই সেটা স্বীকারও করছে, যে ধরা পড়েছে আজকে বেরিলি থেকে, সে স্বীকারও করছে যে হ্যাঁ নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এমনকি তার স্ত্রীর নামে মিথ্যা কথা বলে 5,000 টাকা পরিবারের কাছ থেকে নিয়েছে। বিনোদ নামের যে ব্যক্তি, যে পরিবারের কর্তা, তার স্ত্রীর কাছ থেকে এবং তার কাছ থেকে 5,000 টাকা নিয়েছে এই নাপিত, তথাকথিত নাপিত, এই মোহাম্মদ সাজিদ। কারণ সে মিথ্যা কথা বলেছে। তার স্ত্রীর একটা সাক্ষাৎকার দেখলাম, আপনারাও দেখবেন। সেই সাক্ষাৎকারে স্ত্রী পরিষ্কার তিনি জানাচ্ছেন যে না, তিনি মোটেও গর্ভবতী নন। অথচ সে টাকা নিয়েছে এই কথা বলে যে আমার স্ত্রী গর্ভবতী এবং আমাকে কিছু টাকা যদি দেওয়া হয় তাহলে আমি আমার একটু কাজে লাগে। 10,000 টাকা চেয়েছিল, তাকে 5,000 টাকা দিয়েছিলেন এই পরিবারটি। তারপর সে বিনা কারণে এই পরিবারের দুটো ছেলেকে এরকম ভাবে হত্যা করলো এবং আরেকটা ছেলেকেও শেষ করে দিতে চেষ্টা করলো। আমি বলতে চাইছি এর পেছনে নেপথ্যের যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে কি না, পরবর্তী পিঢ়ি, পরবর্তী জেনারেশন সেটা যেন আর না আসে। যদি আসেও সেগুলোকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দাও, কারণ আমরা সংখ্যায় বাড়ছি। টু বি वेरी प्रिसाइज, द बेसिक थिंग इज अगला पीढ़ी, हमारी अगला पीढ़ी दुनिया में अगर नहीं रहते हैं तो हमारी पीढ़ी यहाँ ही खत्म हो जाती है। चलिए, अब मुझे पता नहीं, अभी दिव्येंदु बताएगा कि हम राहुल जी से जोड़ पाए कि नहीं पाए। अगर हाँ, हेलो मिस्टर राहुल पांडे। राहुल जी, क्या आप सुन सकते हैं हमें? मैं हाँ। आपको सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप बदायूं में हैं, तो मैं सॉरी, मैं बीच में बात जो किया था, बांग्ला में बात किया था पहले, लेकिन इट वाज माय फॉल्ट। No. I absolutely forward. Actually, there is no news in our media, in the newspapers, in the television, everywhere. I searched today everywhere, and there is no news I found in the media. And you are the only person, you are the only bridge in between Badayu and Bengal at this moment, and probably you are the only bridge who is going to going to tell us about what is happening there, what is going on there after brutal killing of these two little kids. आप मुझे बताएं, आप हमें बताएं। आपने ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन पहले एक इंसिडेंट सुना होगा कि दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर ने किसी को पैर से मार दिया था। ये पूरे बंगाल में चला होगा, सबने देखा होगा। हाँ, खूब हाँ। शोर शराबा हुआ। किसी का पैर मारना भी पूरे इंटरनेशनल, इवन अल जजीरा और लॉट ऑफ चैनल्स जो कि विदेश के हैं, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लिया था। लेकिन यहाँ 2 बच्चों की गर्दन काटी गई और ये हमें इस बात के लिए मैं हैरान हूं कि बंगाल में लोग इससे अवेयर नहीं है। किसी का किसी को पता जूता नहीं है, मारना, किसी को पता नहीं किसी है, किसी को पता नहीं है, किसी का कोई भी जूता मीडिया नहीं मारना दिखा। बच्चे तक पहुंच गया, पैर मारना बच्चे तक पहुंच गया, लेकिन गर्दन काटना लोगों तक नहीं जा रहा है। खैर, नहीं। ये अवेयरनेस की भी कमी है, या वहां के पब्लिक वाले जो देखना और सुनना भी चाहते हैं उनके ऊपर भी, वो क्या देखना क्या समझना चाहते हैं। सारा दोष हम सरकार को ही नहीं देंगे, लोगों का अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए। लोग वही, ये भी गवर्नमेंट बात भी है। उसी हाँ, अकॉर्डिंग चलती है। अभी मैं वहां जो देखा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, प्लीज। ये जो इसमें ओवरऑल आपने जाना कि 2 बच्चों की गर्दनें कटी, साजिद नाम का इनकाउंटर हुआ, ये सब ऊपर की खबरें हैं। लेकिन जो इसमें अब तक मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन में चीज सामने आई है, और नॉट इज माय इन्वेस्टिगेशन, ये उनके परिवार का एक्सेप्टेंस है एक्यूज के, कि इनको कोई गाइड कर रहा था, कोई ऊपर है जो इन्हें गाइड करता है, इस बंदे को, साजिद को। ये उसकी दादी ने, जो एनकाउंटर में मारा गया साजिद, पुलिस एनकाउंटर में, ये उसकी दादी ने बताया कि मर्डर से पहले अचानक उसको एक कॉल आती है, वो घर पे रहता है। उनकी दादी के कहने में भी तमाम कंट्रोवर्सी है। एक तरफ उसके घर वाले बोल रहे हैं कि वो रोजे से था, लेकिन इनकी दादी का कहना है कि जैसे उसकी कॉल आई 5 बजे, उसने घर पे खाना मांगा, बोला मुझे रोटी दो। अगर कोई रोजे से होगा तो रोटी क्यों मांगेगा, वो खुद सोचना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये लोग कुछ तो है जो छिपा रहे हैं। लेकिन एक बात इनकी फैमिली बार बार मान रही है कि
वो अपने घर में था, 5 बजे के आसपास उसे एक कॉल आती है कि आ जाओ। वो बाइक उठाता है और बदायूं पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद मर्डर हो जाता है। तो कोई तो था जो उसे गाइड कर रहा था, अगर इनके परिवार को हम सही माने तो। वो कौन है, ये ऊपर किसकी गाइडेंस पे काम कर रहे हैं? फोन भी आजकल व्हाट्सएप पे अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, कनाडा, दुबई कहीं से भी आ सकती है कॉल, डायरेक्शन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये पुलिस को डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना होगा, अगर उनके घर वालों की बात, साजिद के घर वालों की बात माने तो वो कौन था। दूसरा, ये बचपन से किसी बदायूं सिटी में एक मजार है, दरगाह है, ये वहां जाता था, उस दरगाह से कनेक्टेड था ये फैमिली। उस दरगाह की आज भी इस परिवार में इतनी इज्जत है कि उसको ये सरकार बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं वो मजार है या कोई नॉर्मल आदमी मजार, लेकिन ये आज भी उस दरगाह को सरकार का ठिकाना बोलते हैं कि वहां सरकार रहते हैं। सरकार तो हमारे लिए मोदी की है या योगी की है, आपके यहाँ ममता की है, लेकिन इनके लिए सरकार वो दरगाह है, मतलब वहां का ऑर्डर ये मानेंगे। दैट्स व्हाई हम जिस गवर्नमेंट में रहते हैं हम उसके रूल रेगुलेशन मानते हैं। आप पश्चिम बंगाल में हैं, सैद्धांतिक रूप से विरोधी हो जैसे भी हो, लेकिन आप भी वहां के लॉ एंड ऑर्डर्स मानते होंगे, भाई जो नियम है तो नियम है। लेकिन इनकी नजर में सरकार की जो पदवी है, जो डिजिग्नेशन है, वो उस दरगाह की है। तो बच्चे को वो बचपन से बोल रही है कि वो दरगाह पे जाता था, फिर उसको गाइडेंस आया, फोन आया कि तुम आ जाओ, फिर वो गया और उसने मर्डर कर दिया, काट डाले बच्चे। तो वो बंदा ऐसा था कौन जिसने अचानक बुलाया, जिसके एक इशारे पे वो पहुंच के उसने ऐसी हरकत कर दी, अगर उनकी फैमिली की बात माने तो। बाकी अभी बहुत चीजें इसमें से पुलिस को ही पर्दा उठाना है कि भाई अचानक क्या हुआ। दूसरा चीज, सिर्फ 2 बच्चों का ही कत्ल नहीं हुआ, वहां एक जो सबसे बड़ी चीज का कत्ल हुआ वो है विश्वास, यानी फेथ, और कह लो तो सेकुलरिज्म का भी कत्ल हुआ है। वो जितने भी उस फैमिली के लोग मिले या जितने मोहल्ले के लोग मिले, इन्होंने एक क्लियर बात हमसे बताई कि ये हमें देखता था तो राम राम करता था, ये हमें होली में विश करने आता था, ये हमें दिवाली विश करने आता था, हमको तो पता ही नहीं है कि ये बंदा ऐसा निकलेगा। वो जो उससे शेव कराने आते थे, जो उससे हेयर कट कराने जाते थे, इवन जिन्होंने उसे किराए पे कमरा दिया, इवन उनका नाम संजीव है, उनके घर में एक्स आर्मी के लोग रहते हैं। आर्मी के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी नजरें बड़ी पारखी होती हो, किसी को ट्रेस कर लेते हैं कि ये सही है, क्योंकि जिंदगी भर वो देश के दुश्मनों को पहचानने में अपना वक्त देते हैं। लेकिन वो आर्मी के मेंबर्स भी नहीं पहचान पाए कि इसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो अभी मतलब वहां पे, और जब मर्डर हुआ तो अब लोग वहां के चौंके हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अगर दोबारा कोई साजिद है और उनकी सेव 1-2 साल बढ़ी है, तो भी वो किसी साजिद से दाढ़ी बनवाने में 4 बार सोचेंगे या डरेंगे। तो वहां का जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, सेकुलरिज्म के मायने भी वहां पे बदल रहे हैं, वहां पे लोगों की थिंकिंग बदल रही है। अगर कोई नहीं बदल रहा है तो उस परिवार का, जिस परिवार का साजिद था, उस परिवार और उस गांव के लोग, क्योंकि उस गांव में जब हम गए तो वहां अभी भी इतने एविडेंसेस के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, अभी भी वो बोल रहे हैं खुदा जाने क्या हुआ, हो सकता है किसी ने साजिश रची हो सकता है किसी ने फंसाया हो। वो इतने के बावजूद भी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि साजिद में कमी हो सकती है। जैसे मैं एक कल्ट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मुझे याद नहीं है आज तक 1400, 1500, 1600, 1700 सालों में अपनी गलती एक सिंगल बार भी मानी हो, कभी। यानी ये मतलब मैं तो चैलेंज करता हूं खुल के कि कोई एक बार तो बता दे भाई। हम बीइंग अ हिंदू, हम बहुत अपनी गलतियां मानते हैं, हम मानते हैं पृथ्वीराज चौहान से गलती हुई, हम और भी गलतियां मानने के लिए तैयार है, और हम अपने कमियों को सुधारने के लिए रेडी रहते हैं। भाई हमसे यहाँ गलती हो गई, चलो ठीक है, हम सुधारेंगे। लेकिन कुछ लोगों की मैं आइडियोलॉजी देख रहा हूं, एक सोच देख रहा हूं कि वो आज तक अगर उनसे पूछो कि क्या कभी 2000-3000 साल में, या मतलब जितने भी पुराने हो तुम, कभी एक सिंगल मिस्टेक भी किए हो, एक सिंगल,
तो वो कतई नहीं मानने को तैयार है कि हमसे एक छोटी सी गलती भी जब से दुनिया बनी तब से हुई है, जो कुछ भी गलती हुई है वो सामने वालों से हुई है, हम कभी एकदम पूरी टोटली हम क्लीन एंड चीट है। तो ये वहां भी उसके गांव में अप्लाई हो रहा है। वो नहीं मानने को तैयार है कि वो गलत है, वो नहीं मानने को तैयार है। अरे वो पहले बयान ले लेते, ये कर लेते। अच्छा, एक जो सबसे खास बात है कि वो किसी के गाइडेंस पे काम कर रहा था। जब आप पुलिस का जो एनकाउंटर हुआ, चलो जो मर्डर किया दो मासूमों का, फिर जाहिर सी बात है सिर पे खून सवार था उसके। फिर जो पुलिस का इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर की जब कभी आप पुलिस के जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं किसी इनकाउंटर या किसी एक्शन के बाद, तो उस एक्शन को आप पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई ट्रेंड टेररिस्ट हो, कोई बहुत बड़ा आतंकी हो। क्योंकि पुलिस पे उसने एक उस तरह से तो बच्चे को काटा या छुरी से, लेकिन जब वो पुलिस ने उसको चारों तरफ से राउंड अप किया तो उसने पुलिस पे गोलियां चलाई हैं और उसके पास से वेपन निकले हैं। और पुलिस की गोली सीधे सीधे एसएचओ के छाती पे लगी है। और अगर एसएचओ ने बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनी होती तो डेफिनेटली हम ये सुनते कि दो बच्चों के बाद हमारे 2 या 3 जाबाज ऑफिसर भी बलिदान हो गए साजिद के हाथों। चलो एक ये माना जा सकता है कि एक इंसिडेंट हुआ कि किसी के जुनून आया, उसने काट दिया हो, तो संभव ही नहीं है कि इतनी इतनी निर्दयता भी एक्सेप्ट की जाए। लेकिन उसके बाद उसके विद इन आवर उस छुरी वाले के हाथ में गन आती है इलीगल, और वो पुलिस जो ट्रेंड जो जो जिंदगी भर गोलियों के बीच में रहते उनको भी टारगेट करके उनकी छाती पे गोली मारता है। और निशाना की छाती पे गोली लगती भी है, बुलेट प्रूफ जैकेट से बचता है, और एक पुलिस वाले के पैर में भी गोली लगती है। और हम तो अभी प्रे करेंगे कि हमारे जो भी इंजर्ड ऑफिसर्स हैं वो सेफ रहें, और उन्होंने समाज को, अगर ये जो पुलिस की पूरी केस डायरी है और जो इंसिडेंट है सर्कमस्टांसेस के, उसको अगर इंक्लूड किया जाए तो ये नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट बदायूं, इवन ऑफ यूपी एंड इवन फॉर एंटायर इंडिया एंड वर्ल्ड, एक बहुत दुर्दांत अपराधी या दुर्दांत आतंकी से इस देश को मुक्ति मिली है। अदरवाइज जो बच्चों की गर्दनें काट सकता है, पुलिस को गोली चला सकता है, इंस्पेक्टर के सीने को छेद सकता है, निशाना लगा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता था इन फ्यूचर। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो आदमी जो था साजिद, ये तो बिल्कुल ट्रेन था। अगर बंदा ट्रेन नहीं होता है तो बिल्कुल सीने में, छाती में गोली नहीं टांग सकता। ये इतना आसान काम नहीं है। वो भी पुलिस ऑफिसर जो वो भी पुलिस ऑफिसर वो भी पुलिस ऑफिसर जो छिपने की, बचने की ट्रेनिंग लेता है। उसके बावजूद बिल्कुल सीने में गोली दागता है। तो ये तो ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो सकता है। वो आम आदमी का ढोंग रचा के आपके इधर उधर मन रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। बात यह है, हमें जो पता चला है वो ये ऐसा है कि एक और नया स्क्वाड बनी है। कैसी स्क्वाड? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते ऐसे हैं, मान लीजिए कि अभी बंगाल में कुल मिला के 24 जिले हैं, उनमें से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 56 से लेकर के 62% वो आपको माइनॉरिटीज का वहाँ डेमोग्राफी। उन्हीं जिलों में अगर आप चाहते हो कि शाम को आप सांग को बजाओ, या अपना कोई अगर किसी का डेथ हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको कंधे पे लेकर के राम नाम साथ है ऐसा बोल के, या बांग्ला में बोलते हैं बोलो हरी हरी बोल, ऐसा बोल के हम निकलते हैं घर से। वो भी बंद है वहां पर। आप नहीं ले जा सकते हो। अपने घर में आप पूजा भी नहीं कर सकते हो। ऐसी हाल वहां पर। अभी जो ये लोग चाहते हैं, ये क्या है कि इसका पीढ़ी जो है हमारा, ये पीढ़ी में खत्म हो जाए। आगे जो पीढ़ी है ना, उसको मार दो। ये लोन वुल्फ अटैक ये नहीं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा साजिश है और ये प्लान से चल रहा है इसका। इसको मारना इसका एंड नहीं है। ऐसी घटना घटती रहेगी। अभी एक चीज और भी, अगर इसको हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो घर के ठीक सामने एक परिवार है जिसके 3 बच्चे हैं। पति भी अप्रोक्सीमेटली उस उम्र में आ चुका है कि जब वो शायद नए बच्चे ना पैदा कर पाए। तो तीनों बच्चों पे अटैक होता है, 2 मारे जाते हैं, 1 बच जाता है। तो इसका कोई दूसरा प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है कि भाई इस मोहल्ले में
धाक जमानी है। हिंदू बहुल एरिया है वो मोहल्ला, जहाँ हिंदू ज्यादा है, हिंदू पोर्न एरिया, मतलब हिंदू प्रोन एरिया है, कि वो हिंदू ज्यादा है वहां पे। और उस मोहल्ले में एक पूरे परिवार को खत्म करना, मतलब 3 बच्चे हैं, तीनों को मार देना, जिसमें एक जिंदा बच जाता है ईश्वर की दया से। तो जाहिर सी बात है, प्लान तो यही था कि इसके खानदान को खत्म करना। उसके बाद उसकी जमीन का क्या करना है, जायदाद क्या करना है, ये उसके दिमाग में हो सकता है बैठा हो। कि कई कई बार ये भी होता है कि चलो हमने मार दिया, हम तो जेल काट लेंगे। जो पहले के यूपी के गैंगस्टर करते थे, अतीक अहमद जैसे, कि ठीक है मैंने गोली मार दी, मैं तो जेल जा रहा हूँ, 6 महीने साल भर बाद मैं छूट के आ जाऊंगा, इसकी इतनी करोड़ों की जमीन अपनी हो गई, बेटा तो इसको संभालना। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी का पूरा खानदान खत्म करने की तैयारी करना। ये भी हो सकता है उसके दिमाग में रहो कि भाई अगर हम पकड़े भी गए तो ये जमीन जायदाद खाली होगी, मेरा इस इलाके में टेरर हो जाएगा, आराम से आना, यहाँ कब्जे करना, यहाँ दादागिरी करना। ये हो सकता है वहां रेडिकलिज्म की जो नींव भरना चाहता था, या वहां पे उसको रूट डालना चाहता था, ये उसकी कोशिश जरूर रही होगी। लेकिन वो सारी कोशिश अगर दूसरी सरकार होती तो हमें तो नहीं पता था क्या होता। लेकिन जो यूपी पुलिस ने पराक्रम दिखाया है, वो एक वहां के हिंदुओं को उखड़ने से बचा लिया है। गोली का जवाब गोली से मिला। हम नहीं कह रहे पुलिस ने बढ़ के गोली मारी, गोली उसने मारी, इंस्पेक्टर के सीने पे लगी और एक के पैर पे लगी, एक कांस्टेबल के। हम दोनों को मरने से बचे हैं। तो जो गोली का जवाब गोली से मिला है, उससे कहीं न कहीं वहां के जो डरे हिंदू थे, उनके अंदर ये भावना आई है कि अगर हमें कोई मारेगा तो कम से कम इस सरकार में वो मारा जाएगा। लेकिन जब सती होना था, आप मान लीजिए कि 2 छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बुरी तरह से मारा। अभी अभी हम हाँ, रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि 28 इस बार स्टैब किया गया था वो 14 साल का बच्चे को। 28 stabs in this little body. Can you imagine? कितनी नृशंस, कितनी निर्दय होने के बाद पश्चात एक इंसान से दूसरे इंसान को एक अफवाह सबको सुनने को मिलने को आ रहा है। मुझे पता नहीं आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। आप तो बदायूं में रहते हैं, तो अभी रह रहे हैं, तो बताइए मुझे कि ये सुनने को आए हैं कि बच्चों को मारने के बाद जब वो मारा तो खून भी पी रहा था वो, ऐसा कुछ सुनने को आया। ये क्या सच है? खून खून पीने वाली बात पड़ोसियों ने कही है, कुछ उसके नियर बाई जो नजदीकी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, उन्होंने कही है। क्या जिस हिसाब से खून बिखरा हुआ था, जिस हिसाब से, वो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने भी ये बात मानी है। लेकिन अगर इसको हम ये सोचे कि कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था वो। उसके दिलो दिमाग पे खून सवार था। काफी देर तक वहां पे संघर्ष किया है बच्चों ने। उनकी हाँ, उंगलियां कटी हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी उंगली कटी है। उन्होंने रेसिस्ट किया, मतलब वो ऐसे नहीं कि आ गए और गर्दन अपनी सौंप दी कि लो काटो। वो काफी देर तक वो लोगों ने स्ट्रगल किया है। 2 दुधमुहे बच्चे और छोटा बच्चा, मतलब आवाज मेरी आ रही है आपको? मैं उस नहीं नहीं नहीं, आवाज मैं उस आवाज आ परिवार रही के है। बारे में करूंगा कि वो छोटा बच्चा मात्र 6 साल का या 7 साल का, उसकी इतनी हिम्मत बेचारे की हुई कि अपने बड़े भाई को कटता देख के वो आ गया और उसने छोड़ मेरे भैया को कह के, उस 6 साल के बच्चे ने, जो बाल वीरता पुरस्कार मिलते हैं इस देश में, हम ये जरूर ये देखिए, चाहेंगे कि जब भी भोपाल में ये वीडियो में आप हमें देखिए, आप कैसे ये जो कैसे वीडियो ब्लड। है, ये वीडियो हाथ के निशाने, बार बार बच्चा जो बड़ा वाला काटा जा रहा था उसके टुकड़े कट रहे थे, इसके बावजूद वो दरवाजा खोल के भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बार बार उसे अंदर खींच रहा था कि छत से नीचे नहीं जाने देना है, यहां से इसको जिंदा नीचे नहीं जाने देना है। और उस साइड जो ब्लड है माना जा रहा है उसके छोटे भाई का है। दोनों भाइयों को अलग अलग जगहों पे काटा गया और अंत में एक साथ ले आया गया। खून पीने वाली बात को ना कोई अभी एक्सेप्ट कर रहा है पूरी तरीके से, ना कोई डिनाई कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट की माने तो आईजी का कहना है कि वो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो किसी डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं। और ये जो ब्लड है,
कम से कम 10 मिनट यहाँ पे बच्चों ने स्ट्रगल किया होगा। और वेरी शॉकिंग इस टाइम की, मतलब जो शॉकिंग बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कई छतों से घर दिखता है, तो वो लोग इसके आसपास भी नहीं दिखे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिखेगी आपको, जो सबसे खास बात देखना, वो जो जब वो ब्लड का बल्क आता है, जहां बल्क में ब्लड पड़ा है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे तो हाथ में एक ब्रेसलेट वहां टूटा गिरेगा, ब्रेसलेट। तो वो ब्रेसलेट काले रंग का है। जहां पे ढेर सारा ब्लड पड़ा है तो वहां एक ब्रेसलेट दिखेगी जो काले रंग की ब्रेसलेट है। ब्लैक निशान सबको ही जानते हैं कि, वैसे मैं नहीं करा कि वो सही है क्या है, लेकिन ये देखिए अभी जस्ट पीछे थोड़ा ऐसे आएंगे तो आपको देखेंगे ब्रेसलेट दिखेगा यहाँ पे एक ब्लैक रंग का। हाँ, ये गिरे, ये देखिए, ये जस्ट थोड़ा सा, और अभी अभी ये देखिए वो डंडे हाँ के बगल हाँ, ब्लैक कलर दिख गया की दिख गया। ब्रेसलेट। हाँ दिख गया। तो ब्लैक कलर का झंडा किसका है? ब्लैक झंडे लेके लोगों की, मासूमों की गर्दनें कौन काट रहे हैं, ये दुनिया जान रही है। तो इस बात से भी यहाँ जो काले रंग का ब्रेसलेट है, ये माना जा रहा है उसी किलर का है, हो सकता है। तो काले रंग का जो ब्रेसलेट है, ये एक दूसरी तरफ भी इशारा कर रहा है, जो काला झंडा लेके इस समय पूरे दुनिया में बड़े बड़े जर्नलिस्ट को, बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स को मारा जा रहा है। तो कुछ भी संभव है यहाँ पे, और कोई इतने दिन से इनको भाप नहीं पाया। तो उससे मुझे याद आया मोहम्मद अता। मोहम्मद अता वो जो था जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे पहली जहाज लड़ाई थी, तो वो मुझे याद आया कि मतलब एग्जैक्टली उसकी जो फ्लाइट ट्रेनर थी, उसने भी ये कहा कि ये मेरे पास फ्लाइट की ट्रेनिंग लिया, जहाज उड़ाने की शिक्षा लिया, लेकिन मुझे 1 मिनट भी ये फील नहीं आया कि इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भी जितने लोग भी हैं कि जो भैया राम राम कह के मिल रहा है, जिसके दुकान के आगे महादेव शिव की टाइल्स लगी हुई है, वो बंदा मतलब ऐसा काम करेगा, वो चीज किसी के गले उतर नहीं, मतलब उतर तो गई कि हाँ उसने किया है, लेकिन लोगों के लिए जो सेकुलरिज्म के बिल्कुल नशे में कह लीजिए, या सेकुलरिज्म में पूरा डूबे हुए थे, वो बहुत आसानी से हजम नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को कि ये हो क्या गया। मतलब उनके लिए, दुनिया के लिए नहीं नहीं है, सीरिया, अफगानिस्तान, जॉर्डन, ये दुनिया देख रही है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर एक अपने माइंडसेट का दायरा बना के रखते हैं, उनके लिए बिल्कुल नई चीज है जो उन्होंने अब अपनी आंखों से देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि राहुल जी, आप हमें ऐसा बताएं कि जो बदायूं शहर, वो तो बहुत पुरानी शहर है, इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टाउन, सो इट इज हिस्टोरिकल एज वेल, हिस्ट्री में भी उसका बहुत ही मतलब उल्लेख है इनका। तो आप ये हमें बताएं कि शहर के जो लोग हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने तो आप बात किया होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उस फैमिली में इस मुस्लिम का, साजिद का आना जाना था, बहुत अच्छे से था। उस समय जो शहर के ऐसे लोग जो किसी हिंदू आउटफिट से बिलोंग करते थे, उनको वो चीजें पसंद नहीं आ रही थी। हमको कुछ ऐसे लोग भी मिले जो उसी मोहल्ले में टीका चंदन लगा के घूम रहे थे। हमने पूछा कि भैया ये हो क्या गया, तो उन्होंने कहा कि सांप को घर में पालने का नतीजा है जो उसने डस लिया। तो उन्होंने बात कही, जो हिंदू आउटफिट्स हैं वो अब लोगों को ये समझाना शुरू कर दिए हैं कि अपना जीवन अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने साथ, ये तो समझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले से इन चीजों का या तो अनुमान है, या तो ये चीजें भोगे हुए हैं, देखे हुए हैं, झेले हुए हैं। लेकिन जो सेकुलरिज्म में, उस पर्टिकुलर एक खास सेकुलरिज्म में कि हम कतई नहीं मानेंगे, हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे, वो अब प्रैक्टिकल होना शुरू हो चुके हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते कि भैया ठीक है। कई कई ये भी होता है ना कि ज्यादा हमें मार डालेगा, तो हमें मार डाले कि माइंडसेट से होता है ना कि भाई ठीक है हमें कुछ हो जाए, ठीक है हमारा परिवार सेफ रहे, ये लोगों का माइंडसेट होता है कि ठीक है भैया कोई दिक्कत है, अगर कोई फांसी चढ़नी है तो मुझे चढ़ा दो, हमारा परिवार छोड़। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि आप सेफ रहोगे लेकिन आपका परिवार खत्म हो जाएगा। अब उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए, लोग बच्चा पैदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि जब हम मरे तो हमें हमारी अर्थी को कंधा दे,
लेकिन उन माँ और उन पिता से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों की, दो दो बच्चों की अर्थी को कंधा दिया, और सिर्फ इसलिए कि वो उनके घर में आके बैठता था, वो उनके साथ बैठता था, वो उनके साथ खाना खाता था, उसको फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे, लोग मदद किया करते थे, अंकल वंकल सारा सब नाम होता था कि हाँ अंकल जी आए हैं, और अंकल जी पता नहीं क्या निकले। बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने सही कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि उसने ऐसा काम विश्वास क्यों किया, की मौत हो गई है। फिर उसे उसे मौत की सजा दी जाए। जब वो बोला कि देखो भरोसेमंद था, जैसे बच्चे उससे बाल बाल कटा के आते थे, बोला मेरे तो टाइम नहीं कट रहा है, फोन लगाते लगाते वो ऊपर चला गया। अगर ये पता होता तो हम क्यों जाने देते उसे। बच्चों को बच्चों से ही लाता, बच्चे उससे खूब हित प्रेम करते, साथ में चला गया हमारा पार्लर देखने। वो वहाँ खड़ा रहा, वहाँ से लेके फिर उसे चला गया ऊपर। ऊपर जाके उसने गेट बंद कर लिया और उसे बड़े को मार दिया और फिर छोटे को भी मार दिया। देखिए, सांप को घर में पालने का नतीजा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ऊपर से 2 दिन पहले उसी परिवार से इन्होंने 5,000 रुपया लिए थे, ये बता के कि मेरी बीवी जो है वो पेट से है। असल में क्या है कि बीवी पेट से नहीं है, आपको पता है शायद। देखिए ये वीडियो, एक वीडियो में ये भी बता रही है कि मैं पेट से नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, ये बता रही है। ये भी झूठ बोल के उसी परिवार से 5,000 ना मैं आज उसी फैमिली से आया, सुबह पेट वाली बात के पीछे भी कुछ और कहानी है। क्या पता चला आपको? ये देखिए, आप साजिद की पत्नी हैं? हम यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। सुबह पता चला है, मर्डर कर दिया है। क्या पता चला आपको पूरा? जी बच्चों के बारे में पता चला है बस। पुलिस के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि साजिद ने जा करके बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला। तो क्या आप गर्भवती हैं? ना। देखिए ये बात। हाँ, आप सुबह गए थे आज, फिर क्या हुआ? आज हम अभी भी उसी के गांव के आसपास इस समय मौजूद हैं। और रही बात पेट की, अभी जो इन्होंने कहा कि मुझे तो सुबह पता चला, ठीक है, ये परिवार कितना ज्यादा झूठ बोला है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले, मुश्किल से 2.5-3 घंटे पहले, मैं इसी जो मारा गया साजिद, इसकी दादी से मिलके आया हूं। दादी का ये कहना है कि अचानक एक कॉल आई और कॉल पे साजिद को बुलाया गया, तो साजिद ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे को खाना दे दो, मुझे कहीं जाना है, ठीक है। अब इनकी बीवी का कहना है कि हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो अगले दिन पता चला। इस मतलब आप जरा सोचो, दादी कुछ और बोल रही है, बीवी को अगले दिन पता चला, लेकिन दादी कह रही है कि पहले ही पता था, कोई कॉल आई और जाना है। और जब मर्डर हो गया तो घर पे दादी का कहना है फिर कॉल आई है और छोटे भाई को बुलाया गया है कि छोटे भाई झगड़ा हो गया, जल्दी चले आओ। दर्द बहुत होता है। अच्छा, ये जो है, जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। पता ही नहीं है। अच्छा, तो ये यहाँ पे कब से दुकान कर रहे हैं? बहुत साल हो गई इन्हें दुकान। ये देखिए दादी कितनी धुरंधर ये माँ है, ये माँ ये है। माँ। हाँ, ये माँ। दादी का कहना है कि बेटा घर पे था, एक कॉल आई, वो अपनी बीवी से बोला कि मुझे जल्दी बदायूं जाना है, और बदायूं गया, वहां मर्डर हुआ। फिर घर पे कॉल आई छोटे भाई को, जावेद को, कि वहां बवाल हो गया, चले आओ। मतलब पूरा घर जान गया विदिन 1 or 2 आवर्स। अभी अभी बीवी का आपने बाइट सुना कि मुझे तो अगले दिन पता चला।
सोचिए कैसे इस पूरे मैटर को घुमाया जा रहा है। बेटा कुछ और बोल रहा है, बीबी कुछ और बोल रही है, अम्मा कुछ और बोल रही है, अब्बू कुछ और बोल रहे हैं, ताऊ कुछ और बोल रहे हैं, दद्दू कुछ और बोल रहे हैं। लोकल लोगों ने ये भी कहा कि जैसे मान लीजिए घटना हुई, एक मॉब उठा गुस्से में और इसके पूरे रिश्तेदारियों की दुकानों पर गया गुस्से में कि कहाँ गया साजिद, कहाँ गया। वो दुकानें 11, इसके सारे रिश्तेदार 10+ दुकान उसी आसपास एरिया में चलाते हैं शेविंग की। तो 11 के आसपास दुकानें थी, 11 दुकान पे मॉब गया, वो 11 की 11 दुकानें बंद मिली। मतलब उन्हें पहले इंटीमेट हो गया था कि कुछ होने वाला है। और हमारे यहाँ तो अगर मान लीजिए कोई इंटीमेट आ गया कि हमारे घर परिवार नाते रिश्तेदार का कोई बच्चा कुछ गलत करने भी वाला है, तो हम लोग उसको अपने ऊपर लेते हैं। हम उन्होंने एक सभ्य परिवार में कि देख तू उल्टे सीधे काम मत करना, करेगा तो हम तेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन वहां सारी शॉप मर्डर होते ही या उससे पहले ही बंद हो गई थी। तो सोचिए, या तो उन्हें सबको पता था पहले से कि ये कुछ करने जा रहा है। और मौनम स्वीकार लक्षणम, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक लाइन कही गई है कि अगर आप किसी बात पर खामोश हैं तो वो मान लीजिए आप उस पर कहीं न कहीं उसके शरीके जुर्म है, उसमें इन्वॉल्व है कहीं न कहीं से। और वो 11 दुकान वाले जो दुकान छोड़ के गए हैं, जो दुकानें बंद मिली जिनकी मर्डर के तुरंत बाद, वो अभी तक किसी मीडिया के आगे नहीं आए, किसी को फेस नहीं। इवन मुझे तो ये भी शक है कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी सपोर्ट कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। इसकी जड़ में जितना ही खोदोगे मेरे हिसाब से उतना ही रहस्य और राज निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा राज यही है कि उन 3 बच्चों को क्यों मारा, वो बहुत बड़ा राज है। और उस राज के पीछे अभी तक ये तो मतलब उसमें जो अभी तक आया है, बच्चे आरएसएस वाले स्कूल में पढ़ते थे, राम लक्ष्मण लौकुश का रोल अदा करते थे, उसकी दुकान से अक्सर लौकुश का वस्त्र पहन के हाथ में धनुष बाण लेके घूमते थे, आरएसएस के स्कूल में पढ़ते थे। आरएसएस का नाम लेते कुछ लोगों में क्या मिर्ची लगती है वो पता नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे गुस्से का 7वां पारा चला जाता है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं जब पुलिस अपनी चार्जशीट लगाएगी अंतिम, तब उसमें इन बातों का खुलासा करेगी कि दिस वाज द मोटिव। क्योंकि बिना कोर्ट को मोटिव बताए, जो एक कानूनी पैरामीटर होते हैं कि जज तभी संतुष्ट होगा या कानून तभी संतुष्ट होगा जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि इसकी हत्या क्यों की गई। भाई हत्या कर दी, लेकिन जब तक मोटिव नहीं आएगा तब तक जो है मुझे नहीं लग रहा है कि जावेद को सजा मिल पाएगी, जो इसमें को एक्यूज बताया जा रहा है या जो है चार्जशीट मतलब नामजद को एक्यूज है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ ऑफ इंडिया को भी, क्योंकि आप वहां से आप साथ दिए। आपको जो सीईओ साहब है उनसे भी बात हुई, एक ही नाम है, आपका नाम भी राहुल है, उनका नाम भी राहुल है, तो उनसे भी बात हुई और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्या है कि मैं जो हिंदी बोलता हूँ वो हिंदी क्या है, मैं बचपन से हिंदी फिल्म का बहुत आदी हूँ। तो हिंदी फिल्म देख देख के मैंने हिंदी सीखा, इसलिए बहुत सारे उर्दू वर्ड्स मेरी हिंदी में आ चुकी है, जो कि मैं निकलना चाहता हूँ और कोशिश करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अटल हूँ देख रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको पता है कि उन्होंने बहुत शुद्ध हिंदी कहते थे, तो शुद्ध हिंदी में बात करना ये पढ़ने का व्हाइट वॉश करने की आप सोचिए, जो कम्युनिस्ट मीडिया का या कम्युनिस्ट पत्रकारों का या रेडिकल्स का जो ट्विटर हैंडल है, अब वो लोग इस घटना पे दुख नहीं जता रहे हैं, वो खोज रहे हैं। आज देखो प्रतापगढ़ में पति ने पत्नी को पीट दिया, आज देखो बेटे ने पापा से 200 रुपए के लिए झगड़ा कर लिया। उस घटना को दबाने के लिए इस समय तो ये भी कर रहे हैं कि आज बच्चे ने पापा की जेब से 200 रुपया चुरा लिया, देखो मीडिया दिखा नहीं रही है इतनी बड़ी घटना और बच्चे की गर्दन कटने वाली बात दिखा रही है। तो चारों तरफ से इस कातिल का खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है कि एक छोटी घटना के पीछे, छोटी लाइन के पीछे बड़ी लाइन खींच दो। और यहां जब आप बदायूं में आकर के देखेंगे, हाँ लास्ट में यूपी पुलिस का इस बात के लिए थैंक्स है कि अगर यूपी पुलिस इमीडिएट इतना ज्यादा एक्शन ना लेती या एक्टिव ना होती
तो यकीनन अब तक ये गुस्सा किसी वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका होता। और यूपी पुलिस काबिले तारीफ है, कम समय में जो उसने रिस्पांस दिया है। आई थिंक मतलब ये लोग, आई डोंट नो कि कैसे स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को नंबर 1 पुलिस बोलते हैं। मैं अगर बदायूं के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखूं तो यूपी पुलिस द बेस्ट वन इन वर्ल्ड। वेरी गुड। आपको मैं फिर से अंतर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने अपने कीमती टाइम दिया मुझे, हमारी दर्शकों को और सबकी तरफ से आपको धन्यवाद और नमस्कार। और ये भी कहना है कि अगले किसी शो में आपको शायद मैं बुला लूं तो ना मत कीजिएगा प्लीज, अगर टाइम मिले ना तो। ना ना, हमारा सौभाग्य होगा। और आप जी, सभी को बिल्कुल। और आपके सभी व्यूवर्स को, सारे बंगाल वासियों को, सारे देशवासियों को, सारे दुनिया वासियों को जय श्री राम। जय श्री राम। आपसे शायद आप ही पहला और आखिरी पत्रकार है जो कि डायरेक्ट बदायूं से बंगाल के लोगों से बात की। ये बहुत बड़ी बात है। Really, it's a big thing that today I have not seen anything from Badaun, and it is a little thing, strange thing that people really don't care that there is a huge happening and there is a huge mastermind behind it. I'm really happy that you guys now come to know what really have happened and what is behind the scenario. That is the basic thing. So let's call it over for now. আজ সন্ধ্যার মতো বিদায় চাই। আমি ঠিক করেছিলাম দিব্যেন্দুর সঙ্গে একটু বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো, তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা আমি শেষে কথাগুলোর মধ্যে বলে যাব। সেটা হচ্ছে যে সত্যি কথা বলতে বদায়ুতে এই যে ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনার নেপথ্যে আবার একটা বড় সন্ত্রাসী পরিকল্পনা থাকলে আমি একটু বিস্মিত হব না। এবং আমি বিশ্বাস করি সেরকম কিছু আছে যারা একসঙ্গে এই কাজটা করছে, লোন উলফের ঘটনা নয়। অন্যান্য একটি বিশেষ কৌমবাদে অন্যান্য সমস্ত কৌমের মানুষদের যাতে পরবর্তী প্রজন্ম বড় হতে না পারে, তারা যাতে এখানেই শেষ হয়ে যায়, এরকম একটা প্রচেষ্টা চলছে। ভয়ঙ্কর একটা দিক, আবারও আরেকটা সন্ত্রাসের আরেকটা নতুন ফ্রন্ট খুলে গেল। এর যে ঘটনা, সকলকে বলি যে সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন, সতর্ক করুন, সচেতন করুন। এবং এই কথাগুলো যেগুলো নিয়ে এখানকার মিডিয়া কোনো কথা বলবে না, সেই বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা করুন। এগুলো নিয়ে কথা বলার দরকার আছে, ভাবার সময় এসে গেছে। শুধু ভাবা নয়, কাজে করে দেখানোর সময় এসে গেছে। সকলকে নমস্কার জানাই, বিদায় চাই সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রিয় লাইভ এবং আনন্দম টেলিভিশনের সকলের তরফ থেকে, দিব্যেন্দুর তরফ থেকে, জয়ন্তর তরফ থেকে সকলকে বিদায় জানাই। দেখা হবে আবার আগামীকাল পরবর্তী অনুষ্ঠানে। আনন্দম।